my baby, oh my boy, listen to my song of joy. Oh my baby, oh my boy, listen to my song of joy. I will take you to see the world, fill your days with dreams and toys. One day when you will grow up and you will get to know, far across hot deserts and cold mountain snow, when the nights feel long and dark and the road is hard to see, hold the light inside your heart and remember home and me. Happy retirement to my papa, my chemistry teacher, my class teacher, my life coach and my guru. I wish Dada Dadi were here today to celebrate this day with us. I cannot even imagine you were born 62 years ago to them in a small town of Purnia. You went on to pursue your education from the prestigious Jilla School and your higher education from TNB College, Bhagalpur. Today, we don't just celebrate you. We celebrate 62 years of persistence, 37 years as a teacher, and 27 years of dedicated duty to one institution, that is the Reliance Foundation School. Today is not just the formal closing of a career. It is the turning page in a life that has quietly, persistently, and meaningfully shaped so many others, especially mine. As a daughter, I was oblivious to your strengths and weaknesses for a long time, until one day I saw you stand in the classroom full of people and speak. As they listened in awe and in admiration, as you changed them in ways that is impossible to understand. In a world that teaches us power comes from position, you enlightened me. Asal Shakti kisi gaddi ki mohtaj nahi hoti. And so I entered academia, only to learn that your opinion was actually a fact stated by one of the greatest theorists, Michael Foucault. Knowledge is power. Asal Shakti kisi gaddi ki mohtaj nahi hoti. How do I tell them? I did not meet Foucault in a theory book. I met him through you. There are so many times that you said things casually that went on to become life lessons for so many of us. For example, you used to say, "Kyun magajmari karte ho yaar? Jiyo aur jeene do." How impactful were those words? It took me years to understand them. Ever since I was a child, people told me that you were a bit too boring, a bit too rigid, a bit too serious. But after all these years, I've realized you're not boring, you're disciplined. You're not serious, you move with intention. You're not rigid, you have a belief system that is backed by generations and generations of great men that came before you. You read well, you write well, you eat well, you sleep well, and you work even better. And to all those who say you did not live, you did not live, you thrived. Too much for a system that runs on flaws, and I aspire to be flawed your way. Today marks a milestone in the long, hefty journey that you started in the small town of Dhanbad. May God continue to be kind to you. While the institution you leave will surely feel your absence, we as a family feel an immense sense of return. I have no idea how to end this speech for a journey that continues, and I guess when we can't find words, we find poetry. So I dedicate a few lines of the poem Ulysses to you. Though much is taken, much abides, and though
We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. That which we are, we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to hate. I love you, we love you, and let the upcoming videos be evidence to that. आज का यह दिन हमारे लिए भावनाओं से भरा है। शिक्षण के इस लंबे और समर्पित सफर को याद करते हुए दिल गर्व से भर जाता है। आपने केवल एक शिक्षक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में अनेकों विद्यार्थियों के जीवन को संवारा है। अपने धैर्य और मेहनत और ज्ञान के द्वारा अनगिनत विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाया है। आपकी यह यात्रा वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि उन अनगिनत सपनों की कहानी है जिन्हें आपने साकार करने में मदद की है। आज जहां भी जाते हैं हम लोग, वहां देखा जाता है कि आपके विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। 2 साल पहले की घटना मुझे याद आ रही है कि हम लोग आपके एक मित्र मनोज कुमार झा जी के ओपन हार्ट सर्जरी पर हॉस्पिटल पहुंचे और उनके परिवारजनों के साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ओटी से एक डॉक्टर दंपति बाहर निकलते हैं और आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं कि मिश्रा सर, आप यहाँ पर, क्या ये पेशेंट आपका कोई लगता है? उस दिन, उस समय मुझे आपकी पत्नी होने पर गर्व महसूस हुआ था। मित्र भी हो जिसके साथ मुझे हर डर हिम्मत बदलते हुए नजर आता है, हर मुश्किल आसान लगती है। आपके सपोर्ट के बिना मैं जॉब नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम दोनों अलग अलग स्कूलों में जॉब करते थे। जब कभी आपके स्कूल में छुट्टी हुआ करती थी, मेरे स्कूल में नहीं हुआ करता था। उस समय आप एक माँ और पिता दोनों ही बनकर दोनों बच्चों को घर में संभालते थे और मैं निश्चिंत होकर स्कूल में अपना ड्यूटी देती थी। इतना ही नहीं, मैया को, माताराम को मैं आपके भरोसे छोड़कर जाती थी। आप उनको समय पर नाश्ता दे देते थे, मेरा बनाया हुआ चाय दे देते थे और उनकी अच्छे से देखभाल कर लेते थे। तब मेरा मन निश्चिंत रहता था कि माताराम का टेक केयर करने के लिए कोई घर पर है। जब आप रिटायर हो रहे हैं तो यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है अपने सपनों को जीने का और अपने शौक पूरे करने का। अब समय है कि हम जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ें। वर्षों की कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, यह हो जाता है। अब अवसर मिलेगा कि हम अपने भीतर झांके, आत्मिक शांति को महसूस करें और जीवन के अर्थ को समझने का यह समय होगा। मन की शांति, संतुलन का, प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से जीवन की इस नई पारी में आध्यात्मिक विकास हमें और भी समृद्ध और संतुष्ट बनाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका यह नया सफर शांति, आनंद और आंतरिक शक्ति से भरा हो। एक दूसरे के साथ हमने बिताया हर पल अनमोल, एक दूसरे के साथ हमने बिताया हर पल अनमोल, एक दूसरे की मुस्कान में छिपा है जीवन का मोल। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी रिटायरमेंट लाइफ। नमस्कार। आज आपके रिटायरमेंट के शुभ अवसर पर मेरी कुछ पंक्तियां आपको सप्रेम समर्पित। मैंने एक कविता बनाई है आपके लिए और आप जैसे शिक्षकों के लिए। शिक्षक ज्ञान का आगार होता है, अनेकानेक पुस्तकों का सार होता है, किस्मत से कुशल शिक्षकों का साक्षात होता है। जैसे प्रातः क्षितिज पे
सूर्य का दीदार होता है। महारथी महाभारत में कुछ एक थे, किंतु अतिरथी कुछ विरले ही सदेह थे। कुछ वैसे ही हमारे संजू जी अति कुशल शिक्षकों की श्रेणी में आते हैं, अपने विषय विशेष में अतिरथी कहलाते हैं। अनगिनत शिष्यों से पाना सम्मान वस्तुतः होता नहीं इतना आसान। अनगिनत छात्रों के लक्ष्य साधन में वन संसाधन ये काम आते हैं। रिटायरमेंट के उपरांत भी सफल छात्रों के दिलों और दिमाग में एक स्थान पाते हैं। इन्हीं के सदृश गुरुओं से संस्थान का नाम होता है। इन्हीं के द्वारा उच्च शिक्षण का सर्वोच्च काम होता है। यही वे गुरु जिन्हें शिष्य महान कहता है। इन्हीं प्रज्वलित दीपों से राष्ट्र में अनुसंधान होता है। नदियों की प्रचंड धार दिखा रही अपनी रफ्तार, गुरु हाथों में थामे पतवार, योग्य शिष्यों के संग हो सवार। वन नाविक गंतव्य पर निकलते हैं, मिल जाए लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संग उनके रहते हैं। आप सदृश शिक्षकों के लिए ही सही ही कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात महेश्वराय, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी ओर से संजू जी को रिटायरमेंट के इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई एवं स्वर्णिम भविष्य एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इब्न बतूता की सरजमीन मोरक्को से नॉर्थ अटलांटिक के किनारे से आज हम यह संदेश संजू के लिए उसके रिटायरमेंट के अवसर पर भेज रहे हैं। शिक्षक का अपना जीवन जिस तल्लीनता से, जिस तन्मयता से और जिस एकाग्रता से उसने बिताया है वो काबिल तारीफ है। उसने शान से ज़िंदगी जी है, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी है और हम आशा करते हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं और हम अपना आशीर्वाद भेजते हैं कि उसकी आगे की ज़िंदगी भी, उसके सपरिवार इसी तरह से सफल और सुखी और समृद्ध। Happy retirement, Sanju Mama. हैप्पी बर्थडे संजू, चीयर्स। और संजू भैया, पापा माँ के साथ मिलके तुमने जो शिक्षा का बीज झारखंड की धरा पे लगाया था, उसे एक विशाल छायादार फलदार वृक्ष तुमने गुजरात की भूमि पे तैयार किया। अब तुमने पापा माँ का सपना पूरा किया। अब समय आया है तुम अपना सपना पूरा करो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा की का आशीर्वाद हमेशा तुम पे और भौजी पे बना रहे। संजू भैया प्रणाम। लास्ट में वो दिन आ ही गया जब आपका भी अवकाश लेने का दिन तय हो गया। वैसे शिक्षक, डॉक्टर ये सब सुने कभी रिटायर तो होता नहीं, और शायद अगर रिटायर हो भी जाए तो निजी ज़िंदगी में कोई कभी रिटायर नहीं होता। लेकिन चलिए ठीक है, ये अवकाश का समय मिला है। आप सब दिन अपना समय दूसरों के लिए दिए हैं, अब समय आया है कि आप अपने समय अपने लिए निकालिए। कुछ जो आपका पुराना हैबिट है, जैसे आप लिखते बहुत अच्छा है, पढ़ने के तो आप शौकीन हैं ही, दोनों ही बहुत लाजवाब काम है। खूब लिखिए और खूब पढ़िए। जहाँ तक मेरा मेमोरी जाता है, पूर्णिया का वो लीची का गाछ में आप ड्राइवर बनते थे, ऊपर ब्रांच में चढ़ के वो डाल पर, जो डाल अब कट गया तृप्ति मौसी के शादी में, अब तो खैर पेड़ भी नहीं है, और हम चढ़ नहीं पाते थे, नीचे से देखते रहते थे कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है। हम और मंटू नीचे से गाड़ी का खलासी का काम करते थे। पॉकेट में वो कागज़ का नोट का गड्डी रखा करते थे, फिर काजा, फिर आपका वो नेहरू युवा केंद्र, फिर फुटबॉल से जो आपका प्रेम है वो DSA ग्राउंड में दिखाता।
फिर ऐसे करते करते एक दिन धनबाद से होते हुए फिर सूरत। भगवान करे आप स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए, खुश रहिए और अपना समय अच्छे से बिताइए। एक कविता है, शायद हरिवंश राय बच्चन जी की। इस कविता के 2 लाइन के साथ हम आपके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं कि तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। संजू, वेलकम टू रिटायरमेंट लाइफ, खेती बाड़ी एंड हाट बाजारी। हम तुम्हारे बाल सुलभ मन की सदा ही सराहना करते हैं। कुछ समय के लिए हम सब भाई बहन बचपन के दिनों में वापस जाते हैं, जहां पूर्णिया में माँ के ड्राइंग रूम से लेकर पश्चिम घाट तक कट्टम कुट्टी, लड़का लड़की, शहर सिनेमा, व्यापारी और चेस भी खेलते थे। कट्टम कुट्टी चौक से खेलने पर माँ खेच्चर शब्द से अभिषेक भी किया करती थी। बड़ा ही मजा आता था। कैरम में फक्कर हमें ही बनना पड़ता था। व्यापारी में घर बैठे ही हम बड़े बड़े शहरों को खरीद लेते और बेच लेते थे, जिसे लोग पैसा देकर घूमते हैं। गुस्सा आने पर चेस 1 का 4 भी हो जाता था। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं। हम भाई बहने, दादा दादी और नाना नानी बनते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। साईं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हारी झोली को समृद्धि, सौभाग्य, दीर्घ और स्वस्थ जीवन के प्रकाश से भर दे। मैया कहती थी, उठो पार्थ, गांडीव संभालो। अब तुमको भी अपने बहुमूल्य समय से कुछ पल अपने पोता गोविंदा के लिए निकालो। उसे अपने ही जैसा मातृ पितृ भक्त सच्चा इंसान बनाओ। जूली, एज ए रिटायरमेंट गिफ्ट हम सब तुम्हें पहले ही सौंप चुके हैं। जीवन के इस नए अध्याय पर तुम्हारे लिए 2 लाइन। मन की बीना से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीना से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, हर तरफ खुशियों की बरसात है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, हर तरफ खुशियों की बरसात है। अपने अग्रज की पूजा करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। संजू, तुमको और जूली को मेरा प्रणाम। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशन संजू। प्रणाम संजू भैया, रिटायरमेंट आपको बहुत 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 मुबारक। टीचर होना एक बहुत गर्व का बात है, और आप और भाभी दोनों आदमी हम लोग के लिए या पूरे परिवार के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किए हैं। और हम लोग को भी आप ये प्रेरणा देते हुए दे दीजिए कि हम लोग भी ऐसा ही कुछ करें जो आप लोगों ने किया है। और जो भी आपका इच्छा अभी तक कुछ ऐसा बाकी रह गया हो, तो मेरा ये शुभकामना है कि आपको वो सारा इच्छा आप लोगों का पूरा हो। आप भाभी और बच्चे पूरे लाइफ को बहुत 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 एंजॉय करिए। हैप्पी रिटायरमेंट मामा। कांग्रेचुलेशन, तुमको बहुत 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 बधाई तुम्हारा नया इनिंग के लिए। नया इनिंग क्या, अभी बस क्वांटम केमिस्ट्री से थोड़ा पापा के साथ जाके अप्लाइड केमिस्ट्री लगाइए, उपज कराइए और मजे करिए।
और जल्दी से जल्दी पूर्णिया शिफ्ट हो ताकि थोड़ा रेंज में आओ। हाँ, अब आपको 6 बजे नहीं उठना पड़ेगा। 6 बजे तो वो वैसे भी उठेगा क्योंकि गुड हैबिट्स अच्छा हाँ, नहीं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। और थोड़ा मेक संजू मामा हेल्दी एंड वाइज। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अब तुम फोन थोड़ा कम यूज करो। जो हमेशा फोन पे ऐसे आंख गड़ा के चिपके हुए रहते हो वो नहीं करना है अब आफ्टर रिटायरमेंट। और भी चीजों को ट्राई करो। हाँ, हेलो संजू मामा। प्रणाम मामा जी। प्रणाम। आराम से हैप्पी रिटायरमेंट एंजॉय। पार्टी ड्यू रहा आपका, आप जब आइएगा दिल्ली तो यहाँ पे भी आपको आना है। हैप्पी रिटायरमेंट संजू भैया, प्रणाम। विश यू ऑल द बेस्ट। अब जो भी चीज़ तुम्हारा समय नहीं के वजह से नहीं किया, अब ये समय है वो सब करो, घूमो फिरो, सबके पास आओ और एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। Happy retirement, Sanju Mama. Hope you reflect on a very satisfying career. And enjoy your free time. प्रणाम संजू भैया, आपको रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है हम सभी के लिए। होपफुली अब रिटायरमेंट के बाद आपको टाइम मिलेगा मुंबई आने का। आपकी नई इनिंग्स के लिए हम लोगों की विशेज़ यही है कि वो खुशियों से भरी हो और आप सभी हेल्दी रहें और जल्दी जल्दी आप लोग मुंबई आइए। थैंक यू। संजू के बारे में बात करने में बड़ा असहज लग रहा है क्योंकि आमने सामने बात करने की आदत रही है। बहुत सारी बचपन की यादें हम लोगों की हैं। मुझे लगता है कि उसे भी याद होगा कि कैसे हम लोग खेलते थे नौरतन के उस घर में। मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय यदि पूर्णिया में कोई गुजरा है तो नौरतन के उस घर में गुजरा है। इतने सारे लोग हम लोग एक साथ रहते थे और संजू के साथ पेड़ पर चढ़कर हम लोग खेला करते थे। फिर एक तय हुआ, मेरी माँ और शोभा दीदी की दोस्ती, अब मुझे लगती है इसका क्या मीनिंग रहा होगा। और फिर दोनों ने तय किया कि हम दोनों को हॉस्टल में दे दिया जाए और काजा स्कूल के हॉस्टल में हम लोग को डाल दिया गया। डिफ़िकल्ट हॉस्टल था, बहुत परेशानी वाला हॉस्टल था, आसान नहीं था वहाँ रहना, लेकिन हम दोनों वहाँ एडजस्ट कर गए और रह गए और हमने वहाँ से पास आउट किया। संजू मुझसे जूनियर था और बड़ी सारी यादें, बड़ी सारी समस्याएं हमने झेली जिसकी यादें हमें हैं। लेकिन संयोग की बात है कि मेरे पिताजी पापा शिक्षक थे और संजू को भी बहुत मानते थे, मुझे भी बहुत मानते थे और दोनों हम लोग शिक्षक बने। और ऐसा लगता है कि शिक्षक बनने की प्रेरणा उनसे हम दोनों को मिली और संजू के शिक्षण का जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा है। लेकिन शिक्षक का कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है। ये तो राष्ट्र निर्माण का काज है और हम लोग लगे ही रहेंगे इसमें। मेरा भी रिटायरमेंट कुछ साल में हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर्स का रिटायरमेंट थोड़ा लेट से है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि हमें कुछ करना चाहिए, मिलजुल के पूर्णिया में कुछ करना चाहिए। मैं उससे और लंबी बात करूँगा कि पूर्णिया में क्या किया जा सकता है, कैसे हम लोग अपने ज्ञान को दान के रूप में आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। संजू तुम्हें बहुत बहुत बधाई एक सफल शिक्षक होने के लिए। बहुत नाम मैंने सुना है तुम्हारा और तुम अभी भी इतने अच्छे लगते हो देखकर, बिल्कुल मुझे पापा की याद आ जाती है। और जिस तरीके से ग्रेविटी के साथ तुमने अपने शिक्षण को किया है वो एक उदाहरण है नए जनरेशन के लिए कैसे काम करना चाहिए। और श्योर है कि हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, भले ही एक रोल से हट के दूसरे रोल में जाने की तैयारी हो रही है। बहुत शुभकामनाएं तुम्हें अपने अगले कार्यकाल के लिए, जो कुछ भी तुम तय करो। और हम सब लोगों को मिलना चाहिए ऐसे मौके पे। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं गुजरात आता हूँ और ये तुम गुजरात में ही रहने का तय करते हो तो मैं ज़रूर मिलूँगा। जहाँ भी रहोगे मैं कोशिश करूँगा कि कल्लू से भी मुलाकात नहीं हो पाई बहुत दिन से, गुड्डी से बात होती है बीच बीच में, माही से बात होती है बीच बीच में, मिनी मौसी का बराबर आता रहता है रेफरेंस, तो उनसे बराबर बातें होती रहती हैं व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी। तो बहुत यादें हैं मेरी उस समय की, उस जगह की, उसको
रिलीव करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई संजू। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का वक्त है क्योंकि आज मेरा छोटा कर्तव्यनिष्ठ भाई ससम्मान सेवानिवृत्त हो रहा है। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि मेरे इस कर्मठ और लगनशील भाई ने शिक्षण के क्षेत्र में सहस्त्रों दीपक जलाए हैं जो अपने परिवार से लेकर देश विदेश में भी प्रज्वलित हो रहे हैं। मैं संजू की कड़ी मेहनत, लगन और हमेशा मुस्कुराते रहने और सबसे प्रेम भाव से मिलने जुलने की हमेशा प्रशंसक रही हूँ। उसके खाने खिलाने का शौक, हमेशा अच्छे कपड़े पहनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तुम लोगों ने हमेशा मुझे और ओझा जी को बड़ी बहन और बहनोई का प्यार और सम्मान दिया जो हमेशा हम लोगों के हृदय में रहता है। बचपन की बहुत सारी मीठी यादें हैं जिसे मैं हमेशा अपने खाली पलों में याद करती हूँ, जैसे कि हम लोगों का गर्मी की छुट्टियों में लीची के गाछ पर सारे दिन लटकना, घर बंद कर आइए जी बैठिए जी खेलना बहुत ही याद आते हैं। और तुम दोनों ने अपनी नौकरी के साथ साथ मैया और मिसरजी मौसा का प्रीमियम केयर किया जो कि काफ़ी सराहनीय है। मैं तुम्हारी इस नई जर्नी में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कुछ दिन पहले आज़ाद पंछी की तरह घूमो, फिर आराम करो, शौक जो अपनी व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए हो उसे पूरा करो। फिर हम सभी रिटायर्ड भाई बहन अध्यात्म, मेडिटेशन और नेचर पर फोकस करेंगे और अपने बचपन का अतुलित आनंद लेंगे। हम दोनों का आशीर्वाद है कि तुम सब परिवार स्वस्थ, संपन्न और आनंदित रहो। मैंने ये वीडियो पापा माँ के फोटो के सामने बनाया है संजू, क्योंकि वो लोग तुम्हें तहे दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा आगे का इनिंग जो है बहुत ही सुखद हो, है ना, और रोमांचक भरा हो, है ना। बहुत अच्छी अच्छी खबरें हम लोग को सुनने को मिले, है ना। ये उन लोग का आशीर्वाद है। और इन सभी के साथ मेरा ओझा जी और सभी बड़े जनों का तुम पे बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। खूब खुश रहो। संजू भैया को प्रणाम। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। आगे आप जीवन में स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब घूमते रहें, यही हमारी शुभकामना आपके साथ। हेलो संजू माँ, प्रणाम। आपको हैप्पी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के दिन मिली जुली मिक्स फीलिंग होती है, लेकिन ये भी एक लाइफ का पार्ट है। सबको एक दिन तो रिटायर होना ही होता है जॉब से। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जो आपकी जो सेकेंड इनिंग हो वो खुशियों से भरी हो। आप अपने परिवार के साथ उस खुशियों को शेयर करें, साथ में मिलजुल कर रहें। आपकी जो अधूरी इच्छा रही है, जो आपने जॉब करते हुए जिसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको अच्छे से पूरा करें, अच्छे से निभाएं। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं अपने लिए उसको जिएं। आपकी जो सेकेंड इनिंग है, हम चाहते हैं कि अपने नाती और नतनी के साथ पिकाचू की तरह जैसो अच्छे से खुशियों भरे जीवन से बिताएं और यही भगवान से प्रार्थना है कि हमेशा आप खुश रहें। संजू भैया प्रणाम। आपके सफल कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्ति पर हार्दिक बधाई। आपने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से निभाया, जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भैया, हम लोगों का बचपन आपके साथ बीता है, अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। अब आपके एवं अपने लोगों के साथ कुछ समय आप जरूर बिताइएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला जीवन सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य से भरा रहे। नई शुरुआत के इस सुनहरे समय का आप भरपूर आनंद लें। रिटायरमेंट का असली अर्थ होता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जगह को खाली करके दें, ताकि जो हमारी अगली पीढ़ी है वो फिर उस जगह पे काम करे। इसीलिए कहते हैं, एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, इसलिए लोग रिटायर करते हैं। थैंक यू। हेलो संजू मामा। प्रणाम मामा जी। प्रणाम। आराम से हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट, एंजॉय।
पार्टी ड्यू रहा आपका। आप जब आइएगा दिल्ली तो यहाँ पे भी आपको आना है। जब मेरे पुत्रवत दामाद श्री संजय मिश्र अपने सेवा काल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सूरत स्थित एक प्रतिष्ठित JH अंबारी स्कूल में उन्होंने साइंस शिक्षक के रूप में लगभग 27 वर्षों तक बड़े ही निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य किया और हजारों छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे वह स्कूल हमेशा उनकी भूमिका को याद रखेगा। स्कूल के विद्यालय के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके उदाहरण स्वरूप अपने दोनों बच्चों को उच्चतम शिक्षा से युक्त कर महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया। आज हम इस बात को भी कहना चाहेंगे कि इस उनके व्यक्तित्व को सजाने में, संवारने में मेरी बेटी जूली की भूमिका बहुत ही प्रभावशाली रही, जो बिल्कुल जीवन साथी के रूप में उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही। और आज के इस अवसर पर हम अपने दामाद को आशीर्वाद देते हैं कि वह यह रिटायरमेंट जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि यहाँ से और भी नए शुरुआत वो कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए हमारा शुभकामना के साथ साथ उनको आशीर्वाद है, वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यशस्वी बने। खुशी की बात जब मैं रिटायर किया बेटा से बढ़कर बहुत खुशी की बात है। हमरा सबके नहीं जा सकेंगे, लेकिन जाना चाहिए। हम अपने आशीर्वाद से स्वस्थ रहे, प्रणाम संजू मामा। सो कुछ दिनों में आपका रिटायरमेंट है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि यू आर जस्ट रिटायरिंग बट यू आर नॉट टायरिंग। सो कंटिन्यू योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स ऑफ टीचिंग and keep blessing us as always. Yours truly, Laddu Jha. प्रणाम संजू मामा, हैप्पी रिटायरमेंट, एंजॉय योर न्यू फेज ऑफ लाइफ। प्रणाम, आपको जीवन के इस नए अध्याय की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रिटायरमेंट खुशियों और सुकून से भरा हो। जीजा जी, आपने अपने जीवन में न जाने कितने बच्चों को शिक्षा दी और मैं आज खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे भी कुछ समय आपसे सीखने का अवसर मिला। हम सबको आप पर गर्व है। आप हमारे परिवार के इतने समर्पित और आदर्श शिक्षक हैं। एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि उसकी दी हुई शिक्षा हमेशा जीवित रहती है। जिंदगी के इस सुनहरे पड़ाव पर आपको ढेर सारी खुशियाँ और अच्छा स्वास्थ्य मिले। अब वक्त है अपने सपनों को जीने का। रिटायरमेंट की ढेरों शुभकामनाएं। संजू भैया प्रणाम। अभी मैं क्लिनिक से आया और पता लगा कि आपके रिटायरमेंट पर परिवारजनों के द्वारा बड़े बड़े शब्द बोले गए, जिसके लिए आप हकदार हैं, जिसके आप सचमुच में हकदार हैं। आप का रिटायरमेंट जो हो रहा है, आप जहां कहीं भी रहें स्वस्थ रहें। और रिटायरमेंट सेकंड इनिंग का शुरुआत होता है। पहला इनिंग आपने बहुत अच्छा खेला, सेकंड इनिंग उससे भी अच्छा हो, यही मेरी हार्दिक कामना है, इच्छा है। हैप्पी रिटायरमेंट संजू मामा। अब आप ऑफिशियली फ्री है, लेकिन याद रखिएगा हमारे डेयरी मिल्क का कोटा अभी भी पेंडिंग है। हैप्पी रिटायरमेंट संजू मामा। अब टेंशन खत्म और पेंशन शुरू। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिटायरमेंट संजू भैया। थैंक यू फॉर अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, for the dedication and the diligence that you have shown thus far. Thank you so much for being a beacon and an example of the same.
May this new chapter bring you endless joy, peace and good health. ये सेकेंड इनिंग्स पहले से भी ज़्यादा एक्साइटिंग और एनर्जेटिक हो. This is what we will all wish for. And bless you भैया. Take care. प्रणाम संजू भैया. रिटायरमेंट आपको बहुत 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 मुबारक. टीचर होना एक बहुत गर्व का बात है और आप और भाभी दोनों आदमी हम लोग के लिए या पूरे परिवार के लिए सबके लिए बहुत कुछ किए हैं और हम लोगों को भी आप ये प्रेरणा दे दीजिए कि हम लोग भी ऐसा ही कुछ करें जो आप लोगों ने किया है और जो भी आपका इच्छा अभी तक कुछ ऐसा बाकी रह गया हो तो मेरा ये शुभकामना है कि आपको वो सारा इच्छा आप लोगों का पूरा हो. आप भाभी और बच्चे पूरे लाइफ को बहुत 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 एंजॉय करिए. Pranam Sanju Bhaiya, happy retirement life. But as we all know, a teacher never retires in his or her life. So your second inning starts. So blessings of God with you. प्रणाम भैया, आज आपके रिटायरमेंट का दिन है तो हैप्पी रिटायरमेंट. आज का दिन आपके लिए बहुत खास है क्योंकि अब सिर्फ काम ही काम नहीं करना है. अब समय है उन सभी पलों को जीने का जो शायद काम के उत्तरदायित्व के चक्कर में पीछे छूट गया था. अब समय है अपने मन के सुनने का, अपने लिए जीने का. आपका जो मन करे, जहाँ खुशी मिले आप वो करें. आपने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाया है, चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे आपका स्कूल हो. वैसे तो हमको आपके साथ रहने का बहुत मौका नहीं मिला है, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग आशी की शादी में मिले थे. तो शादी के दिन की बात है कि सभी लोग रेडी होकर के वेन्यू पे चले गए और हम लोग तब तक रेडी हुए नहीं थे. एक अकेले आप ही थे जो हम लोगों के लिए रुके रहे और हम लोगों को साथ में लेकर के गए. तो ये दिखाता है कि आप कितने लविंग और केयरिंग हैं. आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम लोगों पे बनी रहे. आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें. आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं. आज हम सब लोग यहाँ मिश्रा जी के रिटायरमेंट के अवसर, सेवानिवृत्ति के अवसर पे जो है एकत्रित हुए हैं. उनको शुभेच्छा देने के पर्पज से मिश्रा जी ने अपने कार्यकाल को बहुत ईमानदारी, बहुत मेहनत और समर्पण के साथ पूरा किया. ये अपने आप में एक उदाहरण है और हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. उनका शांत स्वभाव और सहयोगी व्यवहार हमेशा याद रहेगा. और आज हम उन्हें विदा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके जीवन में एक नए खूबसूरत अध्याय की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं. मिश्रा जी, हम आपको अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और सुकून भरे जीवन की शुभकामनाएं देते हैं. मुझे आज भी वो पल याद है जब आप को मैंने पटना जंक्शन पे सी ऑफ करने के लिए रात को 11 बजे आया था और आप सूरत के लिए रवाना दे रहे थे 2001 में. और ये जर्नी आज 26-27 वर्ष के बाद कंप्लीट हुआ. इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी रिटायरमेंट मिश्रा जी. आपको आगे जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. प्रणाम सभी को. सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू संजू मामा और मेरे बहुत सारे मामा हैं एंड संजू मामा इज़ वन ऑफ देम. संजू मामा को मैं वैसे कैटेगरी ऑफ मामा में डालूंगी जिनसे मेरी डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे तो बात नहीं होती है, लेकिन जब भी मुलाकात होती है या हम मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी बात नहीं हो रही थी. और वो जो उनसे बातें होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, वो बहुत हार्ट फेल्ट एंड फुल ऑफ वार्मथ महसूस होता है. मुझे वो सारी इंसिडेंट्स आज भी याद है. जैसे जब मेरे नाना जी एडमिटेड थे एम्स न्यू दिल्ली में और हम बिहार निवास में रुके थे, तब संजू मामा हमें बिहार निवास के कैंटीन में ले जाते थे और हम ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट और ये सारी चीज़ें खाया करते थे. तो इन छोटी छोटी बातों को आज भी मैं याद करके बहुत चेरिश करती हूँ. और मेरी बस यही विश है संजू मामा आपके लिए कि आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ हो वो इस लाइफ से, प्री रिटायरमेंट लाइफ से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो. थैंक यू सो मच. मेरे इस पारिवारिक समूह में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा यथोचित. आज संजू सेवा से निवृत्त हो रहा है.
मन में खुशी भी है और आंखें नम भी है। ये तो शाश्वत सत्य है। जो नौकरी में है तो उससे निवृत्त भी होना नियति है, पर बेदाग निवृत्त होना बहुत बड़ी बात है। ये तो काजल की कोठरी है। एक कहावत है ना, काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक बूंद काजल की लागी है सो लागी है। मैं एक कविता सुना रही हूँ, छोटी सी। ये विदाई नहीं है, ये शुरुआत है हमारी जिंदगी की सबसे हसीन, खूबसूरत, बेहतरीन सौगात है। ये विदाई नहीं है, ये शुरुआत है, ये तो जीवन की सुंदर सी सौगात है। अब सब दिन तुम्हारा समय है, अब सब दिन तुम्हारा समय है। न देरी की चिंता, न जल्दी का भय है। अब पूरी आजादी, आराम नई बात है। ये विदाई नहीं है, ये शुरुआत है। आपने मान सम्मान सबको दिया, आपने मान सम्मान सबको दिया। परिश्रमी कर्तव्य साधक सा जीवन जिया। ड्यूटी मीटिंग आपके लिए तो इबादत है। ये विदाई नहीं है, ये शुरुआत है। बड़प्पन का एहसास आपसे हुआ, बड़प्पन का एहसास आपसे हुआ। अहम कभी ना आपको छुआ, अहम कभी ना आपको छुआ। आपका तो सभी से मेल मुलाकात है। ये विदाई नहीं, ये शुरुआत है। आप जैसा साथी मिला स्टाफों को, आप जैसा साथी मिला स्टाफों को। ये तो अभिमान की बात है। आपसे तो संस्था की ऊंची शान है। आपके साथ काम करना ये गर्व की बात है। ये विदाई नहीं है, ये शुरुआत है। चेहरे पर मुस्कान सजी है, नैनों में स्नेह भरा है। संजू तुम इस जीवन में नया कदम रखा है। मैं एक गाना सुना दूं। ये वक्त की फितरत है, माहौल बदल देगा। खुशियों ने जो छोड़ा है, वो दर्द भी चल देगा। खुशियाँ हो या आंसू हो, सब कुछ यहाँ पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। कुछ अश्क मिले कुछ गम, रिश्तों ने दिया क्या है। यादों के अलावा भी उल्फत का सिला क्या है। अब इनके सहारे ही ये उम्र बितानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। संजू बहुत बहुत आशीर्वाद। हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो। मौसी मौसा का आशीर्वाद है। Hello Sanju ji, I've gathered you have reached superannuation. All the best. This is just a milestone. You have a long way to go. Keep doing good work, prioritize and be happy. Stay fit, be calm, be happy and keep going. All the best. अनेक अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद. All the best. हेलो संजू, तुम्हारा रिटायरमेंट का आ रहा है। ऑल द बेस्ट। यूज योर दिस टाइम फॉर योर हेल्थ, योगा, मेडिटेशन और जो सब भी तुम्हारी इच्छा में जो नहीं कर पाए हो, अब वो तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम अपनी स्वेच्छा से जी सकते हो। इस मोमेंट को एंजॉय करो। हमारा ब्लेसिंग्स ऑलवेज तुम्हारे साथ है।
Congratulations, Sanju Mama. All the best to you and Julie Mami. Enjoy this new phase. Travel a lot. Eat good food. Stay happy and healthy always. Hope to meet you soon. Bye-bye. हेलो संजू भैया, प्रणाम। आपको रिटायरमेंट लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत सारे स्टूडेंट आपसे प्रभावित रहे हैं, तो हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। फर्दर आपके लाइफ के लिए बहुत बहुत गुड विशेस। आप रिटायर्ड हो रहे हैं, क्या बोले इस पर? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है बोलने को। मेरे लिए और ये अच्छी बात है कि आप रिटायर होकर वापस पूर्णिया आ रहे हैं। हम चाहते भी थे आप पूर्णिया आए, पूर्णिया में रहें, क्योंकि आपका जो है मछली बहुत मिस करते हैं हम। कभी भेटकी, कभी इलिश, कभी पबजा। तो हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी पूर्णिया आए, यहीं रहें और हम आपको नेपाल, सिलीगुड़ी हर जगह घुमाएं अपने से। और क्या बोलें? ठीक, प्रणाम। प्रणाम पीसा जी। I congratulate you for your retirement and very best wishes that you have completed your one chapter and moving to another chapter of your life. Best wishes for that from your little member of your family. I stand before you with immense love, care and respect as we celebrate your retirement. For decades, you have approached your work with unwavering dedication, and your bright, joyful personality has been a constant light to everyone around you. I have watched you as a dedicated professional and a loving family member, always lifting us. Now, as you close this chapter, I hope every morning brings you the peace you deserve, long afternoons with your favorite books, and countless moments of adventure. We celebrate you today and always. Thank you. प्रणाम संजू भैया, सेवानिवृत्त की हार्दिक बधाइयाँ। आपका धनबाद से सूरत तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और आगे आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें और ट्रैवल करते रहें, हम सबसे मिलते रहें। एनी टाइम दिल्ली आए, अब आपके पास समय रहेगा तो ज़रूर आइए। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी रिटायरमेंट संजू भैया। आप और भाभी आइए यूएस हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, हमें अच्छा लगेगा। से हैप्पी रिटायरमेंट संजू भैया। हैप्पी रिटायरमेंट संजू चाचू। Sanju Chacha, please visit us and spend time with us and with the birthday cake. Happy retirement, Sanju Chacha. Come to us, please. गुड मॉर्निंग संजय भैया। सुबह के 4 बजे हैं ये, और ये मेरा मॉर्निंग सेटअप है चाय और नोटबुक के साथ। व्यावसायिक शिक्षण से सेवानिवृत्त होने के लिए बहुत बहुत बधाई। और अब आप अपना इनिंग भाभी के साथ शुरू कीजिए। मॉल में जाइए, घूमिए फिरिए पहले दिन, और जिंदगी की नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बारे में जो पहला ख्याल आता है वो ग्रुप में एक पिक्चर था, पापा के गोदी में आप हैं, तो सबसे पहले मेरे को जो मेरा ख्याल है आपको तस्वीरों में देखा था। उसके बाद जो संबंध जो प्रगाढ़ हुए वो लुहानीपुर था। मेरे को अभी भी याद है जब आप मेरे लॉज में आए थे और कुछ लोग कम पर रहे थे लुहानीपुर में रहने के लिए, तो आपने कहा था कि मुन्ना हो, वहाँ तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मेरे से और कल्लू से पढ़ने मिलेगा। तो मेरे को आपकी रसायन विज्ञान की जो का ज्ञान था उससे कोई बहुत ज्यादा मेरे को लगता है फायदा हुआ नहीं। जो जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदा मुझे आपसे हुआ वो आपके विचार से और चाय से। चाय से जो मेरा पिछले 40 साल का लगाव है और बहुत गहरा लगाव है, तो मेरे और चाय के बीच में अगर कोई इंसान है तो वो आप हो। पूरे आप गोपाल मामा ग्रुप के आई थिंक
एडमिन हो, संस्थापक हो, और पूर्णिया में जब कभी भी चाय का जिक्र होगा या चाय पे चर्चा होगी तो आपका नाम आता है और आता रहेगा। मेरी क्या हर लोगों की यही विश है कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद घूमो फिरो, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करो, बच्चों और संबंधियों के साथ टाइम बिताओ, और जब कभी पूर्णिया के बारे में कोई भी किताब लिखी जाएगी तो आप वो उन चंद लोगों में से हो जिनका नाम सही में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। चीयर्स। संजू देवरलाल, बहुत खुशी के बाद अहाँ रिटायर भए रहल छी। हैप्पी रिटायरमेंट के बहुत बहुत अहाँके मुबारक। अहाँ बहुत नीक टीचर छी, बहुत बढ़िआँसँ अपन कार्य सम्हाललहुँ, समय पर आना जाना करैत रहलहुँ, कोनो अहाँके ऊपर कोनो कंप्लेन नहीं आयल, बेदाग निकललहुँ, सबसे खुशीके बात छियै। अपन घर द्वार देखैत अनुसार अपन कार्य सम्हालिए, बहुत बड़ी बात छियै। भगवान करे अहाँ रिटायर करू बढ़िआँसँ, अपन जिम्मेदारीसँ हटू, किया तऽ सब दिन नौकरी करैत लोक नहीं सम्हालि सकैए। अपन घर पर भी टाइम देना बहुत जरूरी रहै छै, जेना बाल बच्चा ये, जूली ये, सबके देखना सुनना अहाँके काम छी। आब अपन अहाँ कार्य करैत रहब, बहुत बहुत मुबारक। लाखों सितारों में चांद चमके, आ लाखों हजारों टीचर में मेरे संजू बाबू चमके। हैप्पी रिटायरमेंट। प्रिय संजू भैया, आज दिल थोड़ा भावुक भी है और गर्व से भरा हुआ भी। आपका रिटायरमेंट का दिन सिर्फ एक नौकरी का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा का सम्मान है जिसमें आपने ना जाने कितने जिंदगियों को संवार दिया। एक शिक्षक के रूप में आपने सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाया, सही और गलत में फर्क समझाया और हर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जगाया। आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज जहां भी होंगे, उनके हर कदम में आपकी सीख जरूर साथ होगी। यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आपका पूर्णिया से जुड़ाव और फुटबॉल के प्रति आपका जुनून हमेशा खास रहा है। मैदान हो या कक्षा, आपने हर जगह दिल से खेला और खिलाया है और दिल से सिखाया भी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा हाथ मधोनी में टूट गया था। आप तुरंत मधोनी आए और मुझे अपने साथ ले गए। आपने ही हमें और बाकी भाइयों को चाय के प्रति रुचि जगाई और हर छोटी बड़ी बात में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। आपकी वही बातें आज हमें हिम्मत देती हैं। जूली भाभी का साथ और सुमियो सिल्की की प्यारी मुस्कान हमेशा आपके इस सफर की सबसे खूबसूरत ताकत रही है। आपने जिस प्यार और जिम्मेदारी से अपने परिवार को संभाला, वो भी हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। आपके लिए दिल से निकली हुई कुछ पंक्तियां। मिट्टी पूर्णिया की खुशबू सी आपके हर अंदाज में बसी हैं। फुटबॉल के उस हर एक पास में आपकी लगन साफ दिखी है। कक्षा हो या मैदान भैया, आपने हर किरदार निभाया है। कभी गुरु बनकर राह दिखाई, कभी खिलाड़ी बनकर जोश जगाया है। आपने जो दीप जलाए थे वो आज भी राह दिखाते हैं। हर एक शिष्य की सफलता में आपके ही संस्कार नजर आते हैं। आज विदाई का ये पल है, आंखें थोड़ी नमसी है, पर दिल से बस यही दुआ है आपकी हर सुबह अब पहले से भी ज्यादा खुशनुमा सी हो। अब समय है अपने लिए जीने का, उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का, परिवार के साथ हंसने हंसाने का और बिना किसी जिम्मेदारी के हर पल को खुलकर जीने का। आप अब जूली भाभी के साथ सुकून के पल बिताइए, सुमी और सिल्की के साथ नई यादें बनाइए। यही पल अब जिंदगी के सबसे अनमोल खजाने बनेंगे। आपने हमेशा सबके लिए जिया, अब खुद के लिए जीने की बारी है। सच में भैया, आज ये कहना दिल से निकल रहा है, आप पर हमेशा गर्व था और रहेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशी रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। यही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। ढेर सारा प्यार, आपका अनुज अमित। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं, बढ़ते चलो। अभी रिटायरमेंट
Pranam Sanju Mama. Even though distance keeps us apart, but the khatti meethi memories we share, will always keep you close to my heart. मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपको रिलायंस से ऑफर लेटर मिला और आप धनबाद आए बाबा को बताने के लिए। फिर चाहे सुमी का जन्म का वो अनमोल सा पल हो या फिर जूली मामी के साथ बिताया हुआ एक अपनापन सा एहसास, ये सारी चीजें मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं ये कभी भूल नहीं सकती। आप हमेशा से सभी मामाओं से थोड़ा हट करके ही रहे हैं, क्योंकि मुझे सभी मामाओं से बहुत प्यार मिला है, बट आप में मैंने प्यार के साथ साथ एक अनुशासन का एक संगम देखा है। आपकी शादी से लेकर मेरी शादी तक का सफ़र आपने बड़ी बखूबी से निभाया भी है, और अब इस रिटायरमेंट के टाइम पे मैं अपने दिल से आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं अपने इस वाक्य को यहीं विराम देना चाहूँगी और 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने भाव भी रखना चाहूँगी। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। आपकी रिटायरमेंट सिर्फ एक सफ़र का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। धन्यवाद। हाय चाचा जी। प्रणाम चाचा जी। हैप्पी रिटायरमेंट। आप वैसे तो केमिस्ट्री टीचर के पोस्ट से ऑफिशियली रिटायर हो रहे हैं, बट मेरे लिए तो आप केमिस्ट्री टीचर बहुत पहले थे 11th-12th में। अब तो वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो आप लाइफ कोच हैं और उसमें तो कोई रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला है, वो तो आप हमेशा रहेंगे। आपसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला है, रिस्पॉन्सिबल होना, ओनरशिप लेना, और आप हमेशा मोटिवेट करते हैं कि हम लोग सब इंडिपेंडेंट बने, अपने डिसीजंस खुद ले, अपने पैर पे खुद खड़े हो पाए। नाउ इट्स योर टाइम चाचा जी। अब कोई होमवर्क नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है। अब एक कनाडा ट्रिप तो सक्सेसफुल होना बनता है मेरे साथ। मतलब NIT सूरत का प्लान तो नहीं हो पाया, फ्लॉप हो गया, बट ये प्लान तो पक्का पॉसिबल है। अब आप रिटायर्ड हैं, ऑफिशियली नोबल गैस बन गए हैं, तो बस चाय एंड चिल। आपके स्टूडेंट की तरफ से थैंक यू और हम सब की तरफ से कांग्रेचुलेशंस। बाय बाय। My best wishes for your life ahead of retirement, Sanju Mama. I am now in IIT Kharagpur quarters, and a part of the credit goes to you because you have helped me a lot to shine in my 10th and 12th boards, especially in chemistry, and guiding me in other subjects as well. I will always be grateful to you, and I wish you a great, happy and healthy life ahead. Best of luck for your innings ahead. Thank you. हैप्पी रिटायरमेंट संजू। चलो, तुम बहुत बड़ा उत्तरदायित्व को पूरा करके आगे बढ़ रहे हो और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे और न कभी अब देखना है। तुम इतने अच्छे बच्चे हैं, पत्नी इतनी अच्छी है और सब कुछ तुम्हारा इतना अच्छा है। हमको लगता है आज इसी बच्चे को हम उंगली पकड़ के चलना सिखलाए थे और आज ये बच्चा मेरे सामने में रिटायर हो रहा है। कोई बात नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मेरा बहुत आशीर्वाद तुम्हारे सामने में है। हर समय तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सबको अपने पास बुलाते रहो। जो तुम रिटायर कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि स्वस्थ रहते हुए तुम रिटायर कर रहा है। मेरी जब शादी हुई तो तुम 2 या 3 साल का था, लेकिन अब तुम रिटायर कर रहे हो। वक्त का पहिया इतना तेजी से घूमता है, ये पहले पता नहीं था। ये याद है तुमको, एक दिन बाबूजी को हम ले गए थे उनके दोस्त से मिलाने स्कूटर से। तुम और कल्लू दोनों बार बार मना कर रहा था कि मत जाओ, जाओ बाबू। गिरा तुलदाजी घुसा और पानी पड़ा था, स्कूटर नाला में फंसा, सचमुच बाबू गिर गए, पूरा थाल लग गया धोती और कुर्ता में। तुम लोग इंतजार कर रहा था, हम लोग लेट से आए लेकिन तो भी इंतजार कर रहा था बाबू के आने का। जब बाबू आए तो सबसे पहले उनका कपड़ा देखा, कहीं बाबूजी के कपड़े में ताल लगा हुआ था।
और मेरी यही कामना है कि तुम रिटायरमेंट के बाद स्वस्थ रहो पूरा परिवार और सुखी जीवन जियो, यही मेरी तमन्ना। संजू, तुम रिटायर कर रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है हमको, क्योंकि हमारे पूर्णिया पार्टी मतलब हम लोग का पूर्णिया का सब जो अब हम जितनी बहन और माँ बाबू के बाद मेरा उसको हम लोग पूर्णिया पार्टी करते थे, तो हमारा पूर्णिया पार्टी में हमको ये सुअवसर मिला है तुमको आशीर्वाद देने के लिए, जैसे कि कोई भी मतलब नहीं रहे, मैंने वो तुमको देखे नहीं रिटायरमेंट किसी का, और हम बहुत लकी हैं जो कि अपना दामाद का और बेटा का रिटायरमेंट देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। हैप्पी रिटायरमेंट डे। और क्या बताएं, और तुम तो जब शादी हुई थी तब तुम तो एकदम झाजी मूसा का सबसे छोटे प्यारे तुम ही थे बच्चे, और जो हम लोग बहुत गोदी में लेके झाजी मूसा फोटो खिंचाए थे, वो फोटो हमको याद है। और इस तरह से तुम तो रिटायरमेंट कर रहे हो, लेकिन जूली को तो भी रिटायरमेंट देना चाहिए, उसको सेवा करो रिटायरमेंट का पूरा उसको। हम तो सोचते हैं कि औरत के जिंदगी में कभी रिटायरमेंट नहीं होता है, कहा कि अभी बूढ़े हो गए हैं तो ये हम तभी अभी खींचिए रहे पार कर रहे हैं। हैप्पी रिटायरमेंट डे। क्षेत्र में आपने बहुत साल सेवा दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और स्वस्थ हैं इसके लिए भी बधाई। और मैं आशा करती हूँ कि और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आफ्टर रिटायरमेंट आपके जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय। हैप्पी रिटायरमेंट संजू मामा। हैप्पी रिटायरमेंट संजू मामा। हैप्पी रिटायरमेंट संजू भैया। Ram Masaji, congratulations on your retirement. Your work as a professor has truly been admirable and has positively influenced many lives. Wishing you a very happy and relaxed life ahead, filled with good health, peace and quality time with family. May this new chapter of life be calm, fulfilling and joyful. प्रणाम भैया, हैप्पी रिटायरमेंट्स डे। आके जिंदगी के जरूर एकटा चैप्टर आई खत्म भ रहल छै, लेकिन हमारी शुभेच्छा है जे आगे वाला चैप्टर अहाँ के पिछला चैप्टर से बेसी धुरंधर हुए। अहाँ स्वस्थ रहू, अहाँ बढ़िया रहू, अहाँ हमेशा ए परिवार के गाइड करत रहू। प्रणाम। प्रणाम संजू भैया। रिटायरमेंट के अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको समर्पित कर रहा हूं। आम दिनों की तरह आज भी स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी थी। घर लौटने के लिए कोलाहल करते हुए अपने अपने कक्षाओं से निकलते बच्चों को मैं स्कूल के बरामदे में खड़ा होकर देख रहा था। आज उनका कोलाहल मेरे कानों में संगीत बनकर गूंज रहा था। कुछ देर के लिए कोलाहल से बनी इस संगीत में मैं खो सा गया था। तभी बस के ड्राइवर का आवाज मेरे कानों से टकराई, सर घर नहीं चलेंगे? मैं सोच रहा था काश यह घड़ी थोड़ी और लंबी होती। मेरे परवक्त ने कब मेरी सुनी थी जो आज सुनती। मैं विवश था, न चाहते हुए भी भारी मन से मैं रोज की तरह बस में अपनी सीट पर बैठ गया। बच्चे तो पहले से बस में बैठे थे ही, मेरे बैठते ही आज बस भी तुरंत खुल गई। सच कहूं तो आज मुझे घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। बच्चे एक दूसरे के साथ बातों में जल्दी ही मशगूल हो गए थे। उनके बीच मुझे ऐसा लग रहा था मानो बस रूपी पुस्तक विमान में मैं आसमान में बच्चा रूपी अनगिनत सितारों के बीच विचरण कर रहा हूँ। मेरा अतीत एक के बाद एक मेरे जहन में चलचित्र की भांति चलने लगा। चंद दिनों की तो बात है, अंबानी की इस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था। पहले तो खुद को एक अच्छे और प्रभावशाली शिक्षक के रूप में स्थापित किया, फिर बच्चों में शैक्षणिक नैतिक संस्कारों का बीज बोने में मसरूफ हो गया।
इस बीच पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करने का भरसक कोशिश किया। इस कार्य में मेरी मैडम जूली और मेरे दोनों बच्चे सुमी और सिल्की ने मेरी काफी मदद की। हर मुश्किल की घड़ी में तीनों साया की तरह मेरे साथ खड़े रहे। इन लोगों ने कभी मुझे टूटने नहीं दिया। मेरा यहाँ तक के सफर में मैया पापा के साथ परिवार के सभी लोगों का मुझे भरपूर साथ मिला। सच कहूं तो इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है, या यूं कहें कि मेरे परिवार से ही मेरी मुस्कुराहट है। मेरा परिवार ही मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। प्यारी सुमी और सिल्की जहां मेरी हंसी है, वहीं जूली मेरी सांस है, दिल की धड़कन है। इस सफर के दौरान हमने बहुत कुछ खोया भी है। मैया पापा के अतिरिक्त हमारे परिवार के और भी अपने हमें छोड़कर चले गए। सब के सब हमारे परिवार के लीजेंड थे। ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि इस गौरवशाली परिवार में मेरा जन्म हुआ। मुझे इनका भरपूर आशीर्वाद मिला। इनके आदर्शों को मैंने अपने जीवन के सफर में मूल मंत्र के रूप में अपनाया और यहाँ तक का सफर तय किया। वैसे तो हर सफर का अंत होता है, फिर वह जिंदगी हो या कुछ और। नौकरी के इस सफर में मैं भी आज अपने गंतव्य पर पहुंच गया हूं। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। बस कुछ ख्वाब हैं जो आगे की जिंदगी का सहारा है। न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत है हारी। न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत है हारी। हौसला भी है, इसलिए रहेगी यह सफर जारी, रहेगी यह सफर जारी। सर, घर आ गया है कि आवाज से यादों की श्रृंखला टूट जाती है। मुझे रिसीव करने के लिए जूली, सुमी और सिल्की आई है। बस से उतरते ही सबने मुझे गले लगा लिया है। मैं अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ। कल का संजू आज बड़ा हो गया है, सिटीजन से सीनियर सिटीजन बन गया है। धन्यवाद। सुपर एनिवेशन का हार्दिक शुभकामना है फिर से आपको। हम लोग फुलवड़िया में आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी फुलवड़िया का प्रोग्राम बनाइए। हम लोग मचान पर ताश खेलेंगे, खूब मजा करेंगे और मोंगरी और सिंघी मछली का लुत्फ उठाएंगे। जहाँ से भी हो कवई मछली ढूंढ कर लाएंगे। आप जल्दी से जल्दी फुलवड़िया आइए। धन्यवाद, प्रणाम। हाय संजू, तू तो 31 मार्च का अब रिटायर कर रही है। अपना सबके परिचय जिला स्कूल पूर्णिया के छे वेरी अर्ली डेज, और जो अपना सबके आपकता और ये रिलेशनशिप बनले वो संबंध में एला के बाद। बट ऑलवेज जब भी तोहर छवि हम अस्कर में भी ध्यान में आवे छे, यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ डिसीजन मेकर, नो हैंकी पैंकी, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। द वे यू हैव लिव्ड योर लाइफ दैट रियली कमेंडेबल। और तोहर जो बाकी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमरा पूरा उम्मीद है कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो तो ओकरा पूरा जिम्मेदारी के साथ पूरा करबी। जना मैया के साथ में तोहर जबरदस्त जे एक पैग बेटा वाला जे काज होना चाहिए, बहुत नीक से ओकरा तो कार्य रूप दिली। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड इनिंग। एंड ऑफ कोर्स जे बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटी छो तोहर बच्चा लेल वो पूरा कर भी तू। यू आर अ लविंग हस्बैंड, वेरी लविंग फादर एंड रिस्पॉन्सिबल सन, ब्रदर, एंड फॉर ऑल योर रिलेटिव्स। Whenever anybody needed you, you were present there. Good luck and all the best. रिटायरमेंट। साहू जी, आपको सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों, शांति और अच्छे स्वास्थ्य से भरा रहे।
रिटायरमेंट के इस नए सफर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। गोरा लागे छो भैया, रिटायरमेंट के बहुत बहुत बधाई संजू भैया। Pranam Mosaji, as you retire from your role as a chemistry teacher, we are also proud of you and the dedication you have shown throughout this journey. Even though I was not your student, I've always admired how you shape so many young minds with patience and passion. Your commitment and sincerity have truly made a difference. Wishing you a happy, peaceful and well-deserved retirement period filled with joy and relaxation. प्रणाम चाचा, रिटायरमेंट की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बस अब आपसे उम्मीद है आप सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और रिटायरमेंट का यह अर्थ तो नहीं कि अब आप कुछ नहीं करिएगा। अब इसका यही मतलब है कि वो कार्य करिए जिसमें आपको रुचि लगे, जो आपको अच्छा लगे। बाकी अब आप दिल्ली आए, हम लोग के साथ समय बिताएं, आप, मैं, चाचा, भतीजा, हम लोग खूब घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। चलिए ठीक है, हैप्पी रिटायरमेंट। प्रणाम बड़े पापा, आपको रिटायर होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। संजू, रिटायर होना, खूब दीर्घायु रहो, खूब भगवान शक्ति दो, भक्ति दो। नमस्ते संजू चाचा, आज वो दिन आ ही गया रिटायरमेंट का। आपको बहुत 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 मुबारक हो हमारी ओर से। और सिर्फ आपने अपना जॉब ही नहीं किया, बल्कि पूरी डेडिकेशन, मेहनत और ऑनेस्टी से सबका दिल भी जीता है। आप हमेशा हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। अब आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम रहेगा। इस फ्री टाइम को आप जो भी आपके हॉबीज़ थे, जो मन करता था कर पाए लेकिन नहीं कर पाए समय के अभाव के कारण, वो सब आप कीजिएगा। किताबें पढ़िएगा, गाना पसंद है तो गाना सुनिएगा, चाची के साथ घूमिएगा। चाची बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब कुछ आप भी बना के चाची को खिलाइएगा। और रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे ही फ्री होके बैठे रहो। और अब आपको दुबई भी आना पड़ेगा हमारे यहाँ, जरूर आइएगा और हम लोग आपका वेट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू इनिंग्स। थैंक यू मेरे प्यारे बड़े पापा, आपको अब रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजू भैया प्रणाम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं ये सेकेंड इनिंग्स के लिए, और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें, हम सबकी शुभकामनाएं। हेलो मिश्रा सर, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको जिंदगी के नया अध्याय शुरू करने के लिए। समय इतना जल्दी बीत जाएगा इसका एहसास आज हो रहा है। एनीवे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ होता है। आप ऐसे ही हेल्दी एंड हैप्पी रहें, और शिक्षा के क्षेत्र में गुरु की भूमिका में हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, और ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जल्दी मिलेंगे सूरत में। थैंक यू। Happy and blissful retirement, Sanju Bhaiya. Happy retirement, Sanju Mama. We wish you very good luck and new experiences and new adventures in this new journey. नमस्ते संजू मामा, विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। अभी रेस्ट कीजिए घर पे, और बच्चों के साथ, मामी के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कीजिए। और जब हम आएंगे तो मिलेंगे आपसे डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस वंस अगेन संजू मामा। एक्साइटेड टू हियर कि अब आप नया क्या कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। हैप्पी रिटायरमेंट एंड विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी फैबुलस लाइफ अहेड। संजू माँ, रिटायरमेंट के अवसर पे आपको बहुत बहुत प्रणाम। इस शुभ रिटायरमेंट की घड़ी में माँ भगवती से बस यही प्रार्थना है कि गॉडेस ब्लेसेस यू with health, prosperity, compassion, and a very fruitful rest of the journey to you. माँ भगवती कृपा करें कि हम सब बस आपके छाया में इसी तरह हंसते खेलते फलते फूलते रहें। अब जब आप रिटायर कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास हड़बड़ाने का रीज़न अब कम होगा। आप
बेफिक्र होके आधे घंटे पहले स्टेशन चले जाइए, बट उम्मीद करते हैं कि अब आपका स्टे का ड्यूरेशन थोड़ा एक्सटेंडेड होगा। आइए, अब नया सिलसिला शुरू हो चुका है। पोते नातियों से बस घर अब कुछ ही सालों में भरपूर हो जाने वाला है, तो इस जीवन का अब आनंद उठाइए। कीप ट्रैवलिंग। आई रियली enjoy the way you enjoy traveling, and मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पूरा देश घूमें, सारा विदेश घूमें और ढेरों एक्सपीरियंसेस गैदर करें, ताकि आने वाले जनरेशन को आप प्रिपेयर कर सकें फॉर व्हाट इज़ टू कम इन लाइफ। और हमारे इस पूर्णिया खानदान की लीगेसी को एक ग्लोबल स्टेज पे ले जा सके। जो लोग अब हमारे बीच नहीं हैं, वो हैं तो हमारे ही बीच, और यही चाहूंगा कि आज वो भी एक प्रफुल्लित मुद्रा में आपको आशीर्वाद दे रहे हों। आज आपने हम सब का सर फक्र से ऊपर कर दिया है, गुजरात की धरती पे अपना झंडा गाड़ दिया है। माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। Happy retirement day, Papa. I know you've been waiting for this day for almost a year, and so I'm really glad that the day has finally arrived. Looking back through all of the videos that were sent on such short notice, but nonetheless filled with an immense amount of love and support for you, made me quite emotional, because it made me realize what it means to be a part of a family that loves you and supports you. This past year was quite a journey for us. We lost someone very special. Her absence bleeds through all of the waking moments. But the family came together to support us then, and the family has come together to celebrate you now. And it is a very apt description of what it means to be a family, of how a family sticks through with you. It celebrates you with aplomb and gives you a shoulder to lean on, and is always there for you, come hell or high water. It is very gratifying to see, and I hope that our generation carries this legacy of familial bonds forward, and the way that we come together, irrespective of our disagreements or our differences in opinions or discussions. And I hope that all of us cousins carry this legacy forward. All of the people before me have shared anecdotes about you, and I wanted to share one of mine. The anecdote is of when I first started making rotis, and how the rotis were not little but quite more burnt than rotis usually are, very uneven, basically inedible. But you were always the first one to grab them, and you ate them with such gusto. You proclaimed them to be one of the finest things that you had ever eaten in your life. And you did not do this only once or twice or thrice. You did this every time that I made rotis. Looking back now, I don't think I would have continued making rotis if it were not for you. And frankly, it is true for everything that I've done in my life. Whenever I was going through a difficult phase, you always held my hand. You gave me your unwavering support, and when it was time for me to fly, you gave me the wings. And
when I was not doing well, you believed in me even when I didn't believe in myself. And your belief in me was, I think, one of the things that carried me through it all. And so I'm very, very lucky to have you not only as my father but also as my mentor, my guide, and my best friend. Whenever I was small, I always heard everyone saying how I looked so like you. And now at my age, I think if I become even 0.1% of who you are as a person, I would be set for life. And so thank you so much for being such a great example of how a parent should be, and the way you carry yourself through life is very commendable, and it's something that I strive to be as well. And I love you, and I hope you're always happy, you're always healthy, and I miss you because right now I'm not in Surat.